Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and how the month of November 22 is going to pan out for the Aquarius Ascendant people. Saturn is the Ascendant Lord and it is going to continue to be in the 12th house and will make you feel challenged by introducing feelings of isolation and loneliness. The best way is to address the negative energies of the 12th house through charity services to the hospitals and establishing a connect with the foreigners. If you indulge in anything unethical, then this kind of a placement of Saturn punishes you. Now, so a unique combination is getting created in the 10th house for the Aquarius ascendant people. Mercury, Sun, and Venus. These three planets are going to combine in your ninth house till 11th of November, and from 17th of November, these three will combine together in the 10th house. Further, Mars it has become retro and it is going to move to the sign of Taurus in the fourth house from 13th of November. And so the Mars and Venus are going to see an exchange of signs. Mars will be in Venus's sign, Venus will be in the sign of Mars, and there are 10 planets that are forming a stellium in the 10th house, and Mars is going to aspect this with the seventh aspect, Jupiter is going to aspect this with the ninth aspect. So as a result, house of profession or action is becoming extremely strong in the month of November. The exchange between Venus and Mars is going to provide good results to you on both the professional front as well as on the domestic front. If this exchange of fourth and the 10th lord occurs in the birth chart, then the person gets an education that is related to business, that is degrees in commerce or finance or engagement in real estate. People who are in career related to agriculture, mining, construction, chemicals, hotel management, car dealerships, real estate, apparels, gems and jewelries, they are all going to get benefited during this month. So if I say in a nutshell, then people are going to see a huge opportunity to progress on their professional front in the month of November. Mercury is posited in the 10th house where it is going to get the beneficial aspect of Jupiter. So this month is going to be very good for people who are involved in education, entertainment or speculation or any brokerage related work, because Mercury is the natural significator of communication and brokerage, and for the Aquarius ascendant people it is also the fifth house lord. So if you have Mercury featuring in your AD or MD, then this month will be very beneficial for you on the job front, provided you are doing jobs that are related to Mercury. Jupiter is in the second house and is the lord of both the second and 11th house, and it is a very important planet for the Aquarius ascendant people because it owns both the houses of wealth. This Jupiter is going to transition through the star of Saturn, which is right now transitioning through the 12th house. So you will also get an opportunity to earn from foreign entities. This Jupiter is going to protect your job. So howsoever tough the work conditions are, Jupiter's aspect on both the 6th as well as 10th house is going to protect you, especially if you are in a industry that is related to service or you are doing a job. Then Jupiter's aspect protects you till the time Jupiter is posited here till April 23. Now, there are also certain dates when people need to be very cautious about, and these are the dates when Moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for Aquarius ascendant, these dates are 1st and 2nd of November, 14th, 15th, and 16th of November, 19th and 20th November, and 28th and 29th of November. These are the dates when people need to be very cautious and they should avoid taking any key decision. If you look overall, this stylum that is created in the 10th house itself is contributing to your professional progress in the month of November, and whether you are doing jobs that are indicated by Mars, so all the defense, chemical sector or any kind of a work that has to deal with blood, so the industry that is related to healthcare sector, or any of the jobs that are indicated by fourth house, primary education, vehicles, real estate, all of these people are going to get benefited by this kind of a placement, and a lot of them will see a progress on the professional front in the month of November. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कुंभ लग्न वालों के लिए
नवंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग लग्नेश से शुरुआत करते हैं। लग्नेश शनि 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया, जनवरी 2023 तक लग्नेश यहीं से गुजरते रहेंगे। तो जब भी लग्नेश 12वें भाव से निकलता है तो व्यक्ति को बहुत अकेलापन महसूस कराता है, उसको लगता है कि दुनिया में उसका कोई है नहीं। और इस तरह की स्थिति में अकेलापन आता ही है, तो व्यक्ति को यहाँ पर अकेलापन जनवरी 2023 तक महसूस होता रहेगा, क्योंकि तब तक शनि यहाँ पर बैठे रहेंगे। अभी यहाँ से जाता हुआ शनि, अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं, जैसे कि आप जुए में इन्वॉल्व हैं, या शराब सिगरेट की आपको लत है, या आप अपने काम में बेईमानी करते हैं, तो शनि अच्छी खासी पनिशमेंट देता है व्यक्ति को। लेकिन अगर व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको अच्छा फल देता है शनि। अभी दशम भाव में 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है नवंबर के महीने में कुंभ लग्न वालों के लिए, बुध, सूर्य और शुक्र का। तो इसके अलावा क्या हो रहा है कि गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, और शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो यहाँ पर दशम भाव बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो जिन लोगों की भी अच्छी महादशा चल रही है, शुक्र, बुध, सूर्य की, या फिर गुरु या मंगल की भी, उनको भी प्रोफेशनल फ्रंट पे अच्छी खासी प्रगति देखने को मिलेगी इस महीने में। दशम भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, और चूंकि चतुर्थ भाव के साथ राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तो जितने भी लोग इन भावों से रिलेटेड नौकरियां करते हैं या व्यवसाय करते हैं, यानी रियल एस्टेट में है, प्राइमरी एजुकेशन में है, या फिर आप मंगल से जुड़े हुए कार्य में हैं, यानी कि गोला बारूद हो गया, केमिकल्स हो गए, पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, डिफेंस सेक्टर हो गए, इन सब में काम करने वालों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा निकलेगा। प्रोफेशन के लिहाज से इस मंथ में तरक्की होनी होनी है, क्योंकि 3 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं और 2 देख रहे हैं, तो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक ही घर में पड़ना ऐसा बहुत कम होता है, और इसीलिए पूरा जिसको हम फोकस एरिया बोलते हैं वो एक ही घर हो जाता है। यहाँ पे ये आपका कर्म स्थान है। अगर आपका खेती का व्यवसाय है, आप फार्मर हैं, या आप माइनिंग में हैं, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, होटल मैनेजमेंट, कार डीलरशिप, या फिर आप, जैसा मैंने पहले बताया, कपड़ों का, क्योंकि शुक्र से कपड़े भी देखे जाते हैं, हाई एंड की कार्स देखी जाती हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, उन सब के लिए भी ये महीने में प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छी तरक्की होगी। तो कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना यानी सिर्फ आपके कर्म स्थान पर तरक्की और अच्छी न्यूज़, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस ही दशम भाव पे चला गया है नवंबर के महीने में। और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्रोफेशनल फ्रंट पे प्रगति करने की। अगर आपकी महादशा भी, स्वामी भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये ज़रूर होगा। बुध यहाँ पर दशम भाव में मौजूद हैं। बुध पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं, पंचम भाव से आप स्पेक्यूलेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे गुरु की भी नवी दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर। तो जितने भी लोग एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और स्पेक्यूलेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा साबित होगा। बुध से जुड़े हुए व्यवसाय, जैसे पब्लिक रिलेशन हो गया, कोई भी ब्रोकरेज का बिजनेस हो गया, या फिर आपका लिखने विखने का कार्य हो गया, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन उसके लिए काम करने के लिए बुध की आपको महादशा या अंतरदशा चलनी चाहिए। देखिए, जब भी हम गोचर में कुछ भी चीज देखते हैं, तो उसका रिजल्ट प्रबलता से आपको तब मिलता है जब जो चीज वो प्लैनेट गोचर में दिखा रहा है वही आपके महादशा या अंतरदशा में भी आए, तभी, क्योंकि वो चेन पूरी होती है। तो अभी एक नजर गुरु पे भी देखते हैं। देखिए, गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंभ लग्न के लिए, क्योंकि वेल्थ का स्वामी वही है, द्वितीय और 11वें भाव का। द्वितीय सेल्फ अर्न वेल्थ, 11वां किसी भी तरह का लाभ, तो उसका स्वामी गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ से वो छठवीं घर को देखेगा 5वीं दृष्टि से, और 10वें घर को देखेगा 9वीं दृष्टि से। तो अगर आप कोई भी सर्विस रिलेटेड इसमें है, इंडस्ट्री में है, या कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसके लिए गुरु चाहे कार्यस्थल पे कितनी भी मुश्किल हो जाए, व्यक्ति की नौकरी नहीं जाने देगा। तो अप्रैल 2023 तक जब तक गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की नौकरी सुरक्षित रहेगी। गुरु शनि के नक्षत्र से भी प्रगति कर रहा है इस महीने में, तो 12वां भाव भी एक्टिवेट होगा, यानी आपको मौके मिलेंगे फॉरेन एंटिटीज से पैसा कमाने के। या तो फॉरेनर आपको धन दे के जाएगा, या कई बार आप एमएनसी में काम करते हो तो बाहर से आपको सैलरी वगैरह मिलती है, तो उस तरह के सोर्सेस से भी आपको पैसा मिलेगा नवंबर के महीने में। और ये गुरु आपकी नौकरी बचाता रहेगा जब तक यहाँ बैठा हुआ है। अब महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से निकलता है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए ये दिन है 1 और 2 नवंबर, 14, 15 और 16 नवंबर, 19, 20 नवंबर, और 28 और 29 नवंबर। इन दिनों में आप सावधान रहिए और कोई क्रूशल डिसीजन लेना टालिए। ओवरऑल ये पूरा जो मंथ है कुंभ लग्न वालों के लिए, वो प्रोफेशनल
तरक्की का ही है, कर्म स्थान पर जो घटनाएं होंगी उसी का परिणाम आपको मिलेगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।